Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, many of my subscribers are calling me or sending WhatsApp messages or making comments on my channel. Sir, daily you should give us some motivational video because that act as a tonic for study, and whenever we are off, by watching your videos we are energized and we are able to perform. On their demand, I am uploading this video as a moral booster. Now, first of all, technique of success is don't bother about others. Because what happens is we are surrounded by so many negative people, so much of negativity around us. When we go through those social websites, or when we listen to those people, those are unsuccessful. They only pass on their negativity to us, so we need not bother. In my career, I was a very ordinary person when I started my career. I did my post-graduation in physics. Then I pursued MPhil. And after pursuing my MPhil, I cleared the banking examinations. I was from science background, joined banking industry, and after joining banking industry, I passed out CIB both parts in first attempt. And after doing that, I have even gone for CFA course. Side by side, I pursued LLB also. So I go on adding my qualification, and I topped when scale 1 to 2 written examination was there, and that marks remained a record for the bank for many years. So being a science background person, I could succeed very well in commerce field also. Then I was taken as guide for Indian Institute of Bankers, that is IBPF these days, and I was used to teach banking law and practice for part 2. So there was a complete transformation. People were used to ask, sir, you are having so much of banking knowledge, are you MCOM? I was used to say, no, I am MSc. So everything is possible. You can learn a lot, you can beat others, you can move forward, you can have a decent life. Everything is possible in this world. The only thing is ignore negative people. The strategy which I adopted, I never listened about negative people. I never participated in negative activities. I always focused on my work. And work was worship for me. I performed exceedingly well during my career. And I got all the good postings from the bank because I was never bothered. I will share one very small story with you that has happened with us. When I joined bank in 1982 as management trainee, in 1983 I got offer letter from SBI also as PO. But I preferred to stay with Punjab National Bank. Now after 1 year completion of training, there was a procedure that they will ask for 3 options and they will try to accommodate us in these 3 options. One of my fast friend, Mr. Ram, was also worried about posting. He was very scared about rural posting. So he went to head office at Parliament Street at that time and inquired the name of the region where there is no rural branch. Incidentally, in those years there was no rural branch in Gujarat of Punjab National Bank. So he came and he got information that nobody will be accommodated in Delhi because we belong to Delhi at that time. When option letter came, I filled Delhi as my option. That gentleman filled Gujarat as his first option because he was doing lot of research. He was meeting lot many people. He got the information there is no vacancy in Delhi. So he outsmarted us and filled Gujarat as his first option. But I filled Delhi. When allocation came, to his surprise, the top 10 candidates got Delhi and I was one of them. And I served for 7 years in Delhi. Due to that,
right decision because I ignored the advice of people who are not worth of it. He took the advice seriously. This advice was a ill-conceived, deceiving advice by the people who were knowing nothing about banking, and he landed up at Gujarat. And when we got good posting, he could not get that much good posting. He got frustrated and ultimately left the bank. So what I want to point out, apply your brain. Don't believe others. Everything good will happen if you are believing the God. Don't get depressed. Don't bother about what others says. Why bank will not keep you comfortable? Why? This is my question. They are taking you as an employee. They will try to keep you comfortable, to take the work from you. But whether they can keep everybody comfortable, answer is no. So if you are a good worker, if you are useful to them, they will keep you in good humor. But if you are a burden for them, you are not working for them, in return what you can expect. So that is what is spread. There are people, they are not performing, they are not doing work, expecting goodness from bank, not getting that. But the people, those are working hard for the bank, working with the line with the bank, they are getting everything good. So when you are working for selection, don't bother about these negative or positive triggers, because you will have ample time to encounter these. At present, you should only concentrate on study and be victorious. Thank you very much. आज इतने ही, आगे फिर और आपके साथ स्टोरीज भी शेयर करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स भी शेयर करेंगे. सो आप यही बातें हिंदी में करते हैं. अब मेरे कुछ सब्सक्राइबर कह रहे हैं सर आपकी वीडियो देखते हैं, बड़ी अच्छा लगता है, एक मॉरल बूस्टर हो जाता है, फिर हम जुड़ जाते हैं. जब आपके मोटिवेशनल वीडियो नहीं आते हैं तो हम फिर एक बार दोबारा हट जाते हैं अपने रास्ते से. तो कृपया करके रोज़ एक वीडियो मोटिवेशनल डाल दिया करो ताकि हमें बूस्ट मिलता रहे. अब मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, तो आज का ये वीडियो इन्हीं लोगों के नाम डेडिकेटेड है. अब क्या होता है, देखो ये दुनिया है, यहाँ जिनको हम कहते हैं, अभी आज मैं एक कोटेशन बड़ी अच्छी पढ़ी कि आर्यभट्ट ये सोच रहा था कि मेरे दोस्त कौन है और मेरे रिश्तेदार कौन है. सोचते सोचते उसने शून्य की खोज कर दी. मीन्स उसको पता लगा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी रिश्तेदार नहीं है, एक भी दोस्त नहीं है, और शून्य की खोज हो गई. कहने को ये मजाक में लिखा जिसने भी लिखा, पर जीवन की हकीकत यही है. जिनको हम दोस्त समझ रहे हैं, जिनको हम रिश्तेदार समझ रहे हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी काम नहीं आते. काम क्या आता है? आपकी अपनी मेहनत. काम क्या आता है? आपकी अपनी पोजीशन. काम क्या आता है? आपका अपना पैसा. तो ये जो फजूल की बातें लोग फैलाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, आपका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट करते हैं, इनसे बचिए. आपको क्या करना है? जीवन में अपना एक उद्देश्य बनाइए और उसके प्रति दृढ़ निश्चय बनाइए और उस पर चलते रहिए. अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ. काफ़ी लोगों ने कहा अपने बारे में भी सर आप बताया करो. मैं बहुत ऑर्डिनरी फैमिली को बिलोंग करता हूँ. मैंने एमएससी फिजिक्स किया, एमफिल भी ज्वाइन की. उसके बाद जॉब मार्केट अच्छी नहीं थी उस समय. लोगों ने कहा बैंकिंग में ट्राई करो. मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम दिया और मेरी सिलेक्शन हो गई. उस समय बीएसआर भी होता था और पंजाब नेशनल बैंक मुझे अलॉट हो गया. कुछ ही दिनों बाद स्टेट बैंक का रिज़ल्ट आया, उसमें भी मेरी सिलेक्शन हो गई और उसमें मुझे लखनऊ सर्कल अलॉट हुआ. जब हमने पंजाब नेशनल बैंक ज्वाइन किया तो पीएनबी में उस समय 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की. जगह जगह जाना पड़ता था. 8-10 शहरों में हम गए, 8-10 ट्रेनिंग कॉलेज में गए, ब्रांचों में गए. उसके बाद एक रास्ता होता था कि भाई आपको 3 ऑप्शन देनी है, आप कहाँ पोस्टिंग चाहते हैं. हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था राम. मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरे घर के पास ही रहता था. मेरा और उसका सिलेक्शन हुआ था, हमने इकट्ठे ज्वाइनिंग करी. उसने बिना मुझे बताए चुपचाप वो हेड ऑफिस गया, वहाँ पता किया कि कहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है.
वहाँ किसी ने उसको बता दिया कि भाई दिल्ली में तो कोई वैकेंसी नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, बाकी आप ट्राई कर लो कहाँ आप अप्लाई करना चाहते हो। वो रूरल ब्रांच से बड़ा डरता था। तो उसने कहा सर ये बताओ कौन सा ऐसा रीज़न है जिसमें कोई रूरल ब्रांच नहीं है। बहुत ढूंढ ढांड के उन्होंने बताया कि उन दिनों में गुजरात में हमारी कोई रूरल ब्रांच नहीं थी पंजाब नेशनल बैंक की। तो उन्होंने कहा गुजरात एक ऐसा रीज़न है जिसमें कोई रूरल ब्रांच नहीं है। उसने बहुत समझदारी से गुजरात पहली ऑप्शन भर दी। हमें दिल्ली चाहिए था, हम दिल्ली से बिलोंग करते थे, हमने दिल्ली फर्स्ट ऑप्शन भर दी। हमने कहा या तो दिल्ली मिल जाए या कहीं भी मिल जाए, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। जब बैंक ने अगर हमें अपने घर पे नहीं रखना, कहीं भी रख ले वो तो बराबर ही है ना। जब मकान किराए पे लेकर रहनी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमने सोच के दिल्ली भर दिया, जबकि सब जगह ये खबर चर्चा थी कि भाई आपको होम टाउन नहीं मिलेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, जहाँ भाग्य ले जाएगा चलेंगे। इतने में लिस्टें आउट हुई, जो टॉप के लोग थे उनमें से दिल्ली अलॉट हो गया और हम भी टॉपर थे, हमें भी दिल्ली मिल गया। अब जो हमारे ये परम मित्र थे इनको मिल गया गुजरात। अब ये तो बहुत परेशान हो गए, इनका भी मेरिट में अच्छा नंबर था। ये कहने लगे यार मुझे तो मिसगाइड कर दिया लोगों ने। तो मैंने कहा लोगों की बातों में आप आए क्यों? आपने अपने दिमाग से क्यों नहीं काम लिया? जिनको जिस इंफॉर्मेशन पे आप चल रहे हो वो इंफॉर्मेशन सही है गलत है आपको कैसे पता? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो फजूल की इंफॉर्मेशन है इसको भूल जाओ। इसके बाद स्टेट बैंक से भी मुझे ऑफ़र आई, मैंने प्रेफर किया पंजाब नेशनल बैंक में रहना, क्योंकि मुझे दिल्ली पोस्टिंग मिल गई। उसमें मुझे बाहर जाना पड़ता, झांसी उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रांच दे दी स्टेट बैंक में। अब यहाँ पर मैं अच्छा काम करता गया। एमएससी फिजिक्स था, एमफिल था, उसके बाद मैंने CIB पहले अटैम्प्ट में कर लिया, फिर CFA भी करा, साइड बाय साइड LLB भी मैंने की। अब उससे मुझे क्या हुआ कि मेरी जॉब परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी चलती गई। बैंक ने हमेशा मुझे कंफर्टेबल रखा, मैंने बैंक के लिए लगन से काम किया। तो मेरा मानना तो ये है कि जो एम्प्लॉइज़ बैंक में अच्छा काम करते हैं दे गेट गुड पोस्टिंग्स। अब जो काम नहीं करते हैं या मन चुराते हैं, अब उनको अगर बैंक कंफर्टेबल नहीं रखता तो इसके लिए हम बैंक को दोषी नहीं कह सकते। कुछ लोगों का भाग्य भी हो सकता है कि अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है, कुछ का दुर्भाग्य भी हो सकता है कि उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती। पर मैंने ये देखा है कि अगर हम अपने काम को लगन से करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन चीज़ों में पढ़ते हुए कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, कैसे पोस्टिंग मिलेगी, कंफर्टेबल लाइफ होगी, अनकंफर्टेबल लाइफ होगी, कितनी तनख्वाह होगी, इन सब चीज़ों को छोड़ के यदि मुझे सोच लिया कि मैंने बैंकिंग में कैरियर बनाना है तो मुझे लग के पढ़ाई करनी चाहिए, सिलेक्शन लेनी चाहिए, सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी ही होंगी, इस भावना के साथ आपको ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपको मैं इस तरह की मज़ेदार वीडियोस डालता रहूँगा, आपका मन लगा रहे और आप पढ़ाई करते रहें और आपका भविष्य अच्छा बने। आपने देख ही लिया 500 से ज़्यादा लोग इस साल IBPS PO SO क्लार्क के अंदर सेलेक्ट हो गए हैं। आपके चैनल के सब्सक्राइबर, चैनल डे बाई डे पॉपुलर होता जा रहा है। 28,800 के करीब हम पहुंच चुके हैं। 1-2 दिन में 29,000 का आंकड़ा भी पार करेंगे। कुछ तो सब्सक्राइबर कह रहे हैं सर 1 लाख पहुँच जाओगे आप। चलो पहुँचेंगे तो ठीक है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिले हमारे मोटिवेशन से। और मुझे खुशी होती है जब भी कोई आदमी मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज देता है या कमेंट करता है कि सर आपके मोटिवेशन से मुझे नौकरी मिल गई है। आप समझो मेरा खून कितना बढ़ जाता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरी तो यही आमदनी है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। अब सिर्फ मेरा काम है सोसाइटी को वापस देना, और मैं उसको दे रहा हूँ, बेखूबी दे रहा हूँ। हजारों कैंडिडेट्स के जीवन के अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन में दे पाया हूँ, रोशनी दे पाया हूँ। जब भी किसी को नौकरी मिलती है मुझे लगता है चलो एक घर को मैंने और रोशनी दी है, ये मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है, उसका एक अंश शायद मैं सोसाइटी को वापस कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।